بلیٹن کے آغاز میں ذکر وزیر اعظم عمران خان کے عالمی اسلامی اسکالرز کے ساتھ اہم مکالمے کا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں انصاف اور قانون کی حکمرانی سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ عالمی اسلام کے مایہ ناز اسکالرز کے ساتھ ورچوئل مکالمے کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہی معاشرے پھلتے پھولتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ مزید کہا ریاست مدینہ اسلامی معاشرہ اور اخلاقی رواداری کے موضوع پر منعقدہ نشست سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون رکھا۔ غریب اور امیر کے لیے الگ الگ قوانین ہونے پر قومیں تباہ ہوئیں۔ In the Muslim world today, there are countries which are considered the most corrupt. We are the followers of the Holy Prophet, peace be upon him. I just want to, in that period 622 to 632, did the Prophet raise the level of ethics and morality of the society first, before they became this great nation? And is it possible that if you do not have a certain level of morality in a society, that whether that society can dispense justice? Because justice and rule of law, from my whole experience in international politics, that is the base of a civilized society. سال 2022 میں بھی مہنگائی بم گرانے کی حکومتی روایت برقرار رہی۔ عوام آفٹر شاکس کے لیے بھی ہو جائیں تیار۔ تبدیلی سرکار نے سال کے پہلے دن لیوی کے نام پر پیٹرول بم کا پہلا تحفہ دے دیا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود وفاقی حکومت نے تیل کی قیمتوں میں 4 روپے 15 پیسے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق IMF سے ہونے والے معاہدے کے مطابق پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرول بم گرانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے ڈٹ گئی۔ 350 ارب کے ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کے لیے منی بجٹ کے بعد عوام کو سال نو پر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے مہنگائی کے تحفے کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے اضافہ، جبکہ مٹی کا تیل 3.95 اور لائٹ ڈیزل آئل 4 روپے 15 پیسے مہنگا کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 144 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ڈیزل 1 جنوری سے 141 روپے 62 پیسے فی لیٹر پر فروخت ہوگا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 113 روپے 53 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل 111 روپے 6 پیسے فی لیٹر پر دستیاب ہوگا۔ سال کے پہلے دن حکومت کی جانب سے پیٹرول بم گرانے پر شہریوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ کہا حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا وتیرہ بنا لیا ہے۔ مزید کہا سب اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، غریب کے لیے ہر نیا دن ریلیف کے بجائے تکلیف بن کر آتا ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لیتے ہوئے عوام پر رحم کرے۔ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ عوام بے زبان ہو چکی ہے، وہ ان کے ساتھ جلوس جلسے نکالے یا اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالے۔ آپ لوگ تبدیلی لے کر آئے تو سنبھالو بھی تبدیلی اپنی۔ پاکستان کی عوام کے نصیب میں خوشیاں کہاں ہیں میرے بھائی؟ جب تک یہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے کہاں خوشیاں نصیب میں آتی ہیں؟ یہ تو لوٹنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، بس اپنی جیبیں بھرو اور نواز شریف کی طرح غائب ہو جاؤ۔ اب یہ 4 پہ پھر بڑھا دیا، اب کیا کریں بتاؤ؟ یہی گورنمنٹ رہی اور یہی قانون رہا تو یہ تو بڑھیں گے۔ عوام کو نچوڑنے کی بس باری ہے، تنخواہیں نہیں بڑھ لی ہیں اور مہنگائی بڑھ لی ہے۔ ہر آدمی نفسیاتی ہوتا جا رہا ہے، ذہن کام نہیں کرتا، انسان کیا کرے گا؟ صبح نکلتے ہیں شام کو جاتے ہیں، کبھی گیس کی پریشانی، کبھی پیٹرول کی پریشانی، کبھی گیس کا مسئلہ، کبھی کچھ سمجھ جاتی کہ کیا بنے گا اس ملک کا۔ غریب بندے مار گئے، ہم لوگ ٹیکسیاں والے ڈبے میں پیٹرول لگاتے ہیں بس، اور کیا کرتے ہیں؟ ٹنکی میں دوبارہ تو نہیں ہے، 4 روپے مہنگا ہو گیا۔ مہینے میں 2 دفعہ بڑھتی ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ مہینے میں 1 دفعہ بڑھاؤ تو پھر 2-3 روپے سمجھ میں آتی ہے، اکٹھا ہی 5-10 روپے بڑھا دیتے ہیں، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ بس یہ سوغات ملی ہے ہمیں خان صاحب کی طرف سے، بس خان صاحب ابھی گھبراؤ نہیں، ہم بھی بس جا رہے ہیں۔ گھبرانے کے دن آ چکے ہیں، خان صاحب کے بس کی بات نہیں۔ نئے سال پر پیٹرول بم پھینکنے سے بہتر تھا عمران نیاز سے استعفیٰ دے دیتے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پیٹرول مصنوعات مزید مہنگی ہونے پر پھٹ پڑے۔
हुकूमत का आवाम को पेट्रोल बम का तोहफा। अपोजिशन रहनुमाओं ने वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि दुनिया में खुशी के त्योहारों पर अशिया सस्ती होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान न्याजी ने महंगाई का बम गिरा दिया। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। आवाम को बेरोजगारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम को नए साल का तोहफा दे दिया। इमरान खान ने दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया है, खुशहाली का वो दावा गया कहाँ? नए पाकिस्तान में हर साल गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज्यादा महंगा साबित हुआ है। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। तेल की कीमतों में इजाफे पर तनकीद क्यों? वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम नाराज हो गए। कीमत नवंबर की निस्बत 1 रुपया कम होने की अनोखी मंतिक भी पेश कर दी। कहा पेट्रोल की कीमतों को लेकर बेजा तनकीद हो रही है। मुल्क में नवंबर के मुकाबले में कीमत आज भी 1 रुपया कम है। ऑपोजिशन को ये तकलीफ है मुल्क में कीमतें बढ़ क्यों नहीं रही। बिलावल ने कभी पेट्रोल नहीं खरीदा तो उन्हें कीमतों का अंदाजा नहीं। साल 2021 के आखिरी माह में महंगाई बढ़कर 12.28% हो गई। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2021 के दौरान दाल मसूर 8.64, दाल माश 6.85 और खुर्दनी तेल 6% महंगा हुआ। दाल, चना, फल, चने और दूध के निर्खों में भी इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta दिसंबर 2021 के दौरान महंगाई की शरह 9.81 रिकॉर्ड की गई। सालाना बुनियादों पर मस्टर्ड ऑयल, खुर्दनी तेल, वेजिटेबल घी, गोश्त, चीनी, गंदम, सब्जियों, बिजली और मोटर फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। ताजिर बिरादरी ने भी मुजव्वजा मिनी बजट से महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मुल्क में पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू है, नए साल में हालात मजीद खराब होंगे। आवाम के लिए जीना भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। जब से ये हुकूमत आई है ना, इस हुकूमत में हम लोगों ने आज तक ये नहीं देखी है कि ये चीज़ कम हो गई है। जो चीज़ पिछले महीने मैंने 300 ही खरीदी थी आज 410 रुपए की है। और ये इमरान खान साहब को जो है ना, ये महंगाई का बम जो है ना आवाम पे ही गिराना है। बजट के बारे में हम यही कह सकते हैं, जब से नया पाकिस्तान शुरू हो गया बस ऊपर ही जा रही है महंगाई, नीचे का नाम ही नहीं ले रही। बस यही होगा, अभी तवक्का और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो महंगाई का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यहाँ तो बजट से पहले ही कि बंदा रात को सोता है 120 पेट्रोल है, सुबह उठता है 150 है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती रही है। यहाँ मार्केटों में काम नहीं हो रहा, हमारे काम नहीं हो रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे लिहाजा एक कस्टमर भी नहीं आ रहे, तो हमें दुश्वारी होती है किसी भी चीज़। शहरी साल नौ के आगाज़ पर ही बढ़ती महंगाई से परेशान है। कहते हैं गुज़श्ता साल होशरुबा महंगाई ने गरीब और मेहनत कश तबके की कमर तोड़ कर रख दी। नए साल में सब्जी फरोश, मेहनत कश, दर्जी और पंक्चर लगाने वाले समेत मुतवसत तबके के अफराद क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। भाई उससे डबल गुजरेगा, क्योंकि आते ही गवर्नमेंट ने ना गिफ्ट दे दिया, भाई 4 रुपये लीटर पेट्रोल चढ़ गया। आटा चीनी तो सबको ही पता है जी, 70 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 400 रुपये किलो घी मिल रहा है। अब इंशाल्लाह ज़्यादा ज़रूर सब मिलेगा। सब्जियाँ बहुत महंगी हैं, गरीब आवाम का जीना मुश्किल हुआ है। ये इमरान खान साहब से इल्तिजा है कि मेहरबानी करें, कुछ महंगाई में कमी करें। यार हमारा तो यही उम्मीद है अल्लाह ताला कम करेगा यार, अल्लाह की तरफ से होते हैं, नहीं इमरान खान कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस दफ़ा महंगाई को ज़रा कंट्रोल करे, और इमरान खान साहब को चाहिए नवा साल है कि अच्छा गुजरे और महंगाई पे ज़रा अमन हो। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं नए साल के आगाज़ पर हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासी, अदालती इस्लाहात पर गुफ्तगू करें। फवाद चौधरी का नए साल पर ट्विटर पैगाम में कहना था कि पार्लिमान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वकार कम करना है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। वेलकम बैक। जेहलम से अफसोसनाक खबर दें, जहां नवाही गांव हिरनपुर में मां ने 3 मासूम बच्चियों को गला काट कर कत्ल कर दिया। मां ने खुद को भी आग लगा ली।
तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। अफसोसनाक वाकया, गुर्बत और हालात से तंग आकर मां ने 3 मासूम बच्चियों को गला काटकर मार डाला। तहसील पिंड दादन खान के नवाही गांव हरनपुर में मां ने 3 बच्चियों को गला काट कर कत्ल किया और खुद को भी आग लगा दी। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बाग होने वालों में 5 साला जोया, 3 साला फायजा और 2 साला जन्नत शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुलजिमा यासीन का शौहर रक्षा ड्राइवर है। गुर्बत से तंग आकर खातून ने अपनी बच्चियों को कत्ल किया और खुद को आग लगा ली। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून के जिस्म का 50% से ज्यादा हिस्सा झुलस गया है। हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कराची से खबर दें, जहां सुपर हाईवे पर फकीरा गोट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त बरकत और जख्मी की मोहम्मद अनवर के नाम से कर ली गई है। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं, नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज न किया जा सका। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस मुल्जिमान को CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर फायरिंग का मामला। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अस्पताल ज़राए का कहना है कि बिलाल यासीन के इलाज में 6 से 9 माह लग सकते हैं। बिलाल यासीन की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कि बिलाल यासीन अभी तफसीली बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सके, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा। ताहम पुलिस दरीना अदावत समेत मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। जल्द मुल्जिमान तक पहुँच जाएंगे। पुलिस वकुए के करीब लगे हुए CCTV कैमरों की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि बहुत जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। सईद लोधी, News 1 लाहौर। लाहौर पुलिस ने रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज में स्याह जैकेट्स पहने बगैर नंबर प्लेट्स के 2 मोटरसाइकिल सवार को देखा जा सकता है। एक हमलावर ने डॉल्फिन फोर्स जैसी वर्दी पहन रखी थी, जबकि हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मज़ीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। वजीहा सवाती कत्ल केस में मजमूई तौर पर गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में एक खातून 2 मर्द भी शामिल हैं। तीनों मुल्जिमान को कत्ल के बाद मुल्जिम को मुख्तलिफ कामों में सहूलतकारी पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को ड्यूटी जज तलत वहीद की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान रिजवान हबीब, हुर्रियतुल्लाह सुल्तान की जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसीक की दरखास्त की गई है। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले तीनों मुल्जिमान की भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर फैसलाबाद में 2 खवातीन की लाशें मिलने का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस ने मामू कांजन में अंधे कातिल की वारदात में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन सगी बहनें हैं। उनकी शनाख्त आमना और जीनत के नाम से हुई है। मकतूला आमना की मरकजी मुल्जिम उमर से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई। मुल्जिम ने आमना के साथ मिलकर उसके शोहर जफर अली को कत्ल किया था। मुल्जिम उमर के मुताबिक शादी न करने पर आमना ने शोहर के कत्ल का राज फाश करने की धमकी दी थी। इस पर दोनों बहनों को बहाने से बुलाकर कत्ल कर दिया और लाशें ड्रम में डालकर नाले में फेंक दी थी। नए साल की आमद पर कराची गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अंधी गोली लगने से 11 साला बच्चा जाबाहक हो गया। फायरिंग के दिगर वाकयात में 18 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में भी मंचलों की फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस भी एक्शन में आ गई। फायरिंग करने वाले 36 मुल्जिमान को धर लिया। साल नौ के जश्न के दौरान कराची गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पाबंदी के बावजूद पूरे शहर में मंचले खुलेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग करते रहे। शहर में जगह जगह फायरिंग से 19 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें
शहर में जगह जगह फायरिंग से 19 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें जिना और सिविल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन के सदर रिजवान की गाड़ी पर भी नामालूम समत से गोली लगी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में भी नए साल के आगाज पर हवाई फायरिंग, मंचलों ने अंधाधुंध फायरिंग के साथ साल नौ को खुशामदीद कहा। दूसरी जानिब हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ लाहौर पुलिस भी हरकत में आ गई। जगह जगह छापों और कार्रवाइयों में 36 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से असलहा बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए। वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। खानदान की जेब के अंदर मौजूद होगा। खानदान का मतलब एक शादीशुदा जोड़ा और उनके गैर शादीशुदा बच्चे, ये एक खानदान है, ये खानदान की तारीफ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में भी एक तारीखी इक़दाम है और ये पाकिस्तान का पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम जो है वो इससे अपग्रेड होने जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। दूसरा, पंजाब हुकूमत के ऊपर और ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ऊपर एक तनकीद सामने आती है कि उन्होंने क्या काम किया। मैं आज आपके सामने को हकाइक रखना चाहता हूँ। पंजाब हुकूमत तारीख की सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम पंजाब के अंदर मौजूदा पंजाब हुकूमत चला रही है, जो कि तकरीबन 700-750 अरब रुपए के करीब है, जिसमें वफाकी हुकूमत का PSDP का कंपोनेंट भी शामिल कर लें। 650 अरब रुपए की पंजाब हुकूमत की अपनी ADP है, उसमें वफाकी हुकूमत का कंपोनेंट शामिल कर लें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पैसे शामिल कर लें, तो ये तकरीबन 750 अरब रुपया पंजाब के तरक्याती मंसूबों के ऊपर खर्च हो रहा है। नून लीग के दौर के अंदर मैक्सिमम जो तरक्याती बजट था वो 488 अरब रुपया जो है वो खर्च हुआ, जो मैक्सिमम उनके दौर के अंदर खर्च हुआ। और पिछले साल तरक्याती बजट के ऊपर 98% इसी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने जो है वो 98% बजट खर्च किया। और इस साल ना सिर्फ बड़े पैमाने के ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। आपके इल्म में है कि हम फैसलाबाद में मौजूद हैं। यहाँ फैसलाबाद के अंदर वज़ीर आला साहब ने ख़ास तौर के ऊपर 13 अरब रुपए का पैकेज दिया। वो तमाम पैसे इस साल रिलीज हो चुके हैं। ये जितनी फैसलाबाद में वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट मुकम्मल किया जा चुका है। 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सिंध हाई कोर्ट ने साल 2022 की पहली दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक DG FIA बशीर मेमन की 15 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर की है। बशीर मेमन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि FIA ने पूछगछ के लिए लाहौर तलब किया, लिहाजा 4 हफ्तों की हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने बशीर मेमन को 15 रोज़ में मुतअल्लिक़ा अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। FIA के मुताबिक साबिक DG पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं। इस्लामाबाद में चेयरमैन CDA ने सरकारी इदारों के नाम पर सोसाइटीज़ की तश्कील पर पाबंदी आयद कर दी। पहले से कायम सोसाइटीज़ के नाम तब्दील करने पर भी हिदायत जारी कर दी गई है। भारतीय हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान में क़याम के दौरान हिंदू यात्री मजहबी रसूमात अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार ने हिंदू यात्रियों का वाघा आमद पर इस्तकबाल किया। वाघा बॉर्डर के रास्ते मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हिंदू यात्री लाहौर पहुंचे। ये यात्री चार्टर परवाज के जरिए पेशावर समेत दीगर शहरों में जाएंगे, जहां वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। पाकिस्तान पहुंचने वाले हिंदू यात्रियों का कहना था कि इन्हें खुशी है कि नए साल में वो अपनी मजहबी मकामात की यात्रा करेंगे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत का सिलसिला मजीद बढ़ेगा। आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ जी, क्योंकि आज हमारा बहुत टाइम का सपना पूरा हुआ है। जो काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी की समाधि के श्री दर्शनों के लिए आएंगे। 20 जनवरी के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन भी अजमेर शरीफ, दिल्ली और जयपुर जाएंगे। भारत से आने वाले हिंदू यात्रियों के लिए इस्लामाबाद में मुतादिद प्रोग्राम का इनकाद होगा। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी टूरिज्म का सिलसिला पहली मरतबा माहाना बुनियादों पर शुरू किया गया है।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے احتجاجی مظاہرین سے خطاب کر رہے ہیں۔ نظام کے خلاف، کرپٹ نظامی حکومت کے خلاف، اس ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور سودی نظام کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سودی نظام یہودی نظام ہے، ایک استحصالی نظام ہے۔ یہ الہی نظام کے مقابلے میں ایک شیطانی نظام ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو یہی نظام مدینہ میں موجود تھا۔ اس نظام کی سرپرستی جس طرح آج یہودی کرتے ہیں، اسی طرح مدینہ کی یہودیوں نے پوری سوسائٹی کو، معاشرے کو اور مدینہ اور اطراف کے علاقے کو سودی نظام میں جکڑ لیا تھا۔ لیکن نبی مہربان امام انقلاب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کام کیا تھا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد مسجد کے قریب ایک مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اور نبی مہربان نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو مسلمانوں کی مارکیٹ میں آ کر کاروبار کرے۔ اور اس طرح انہوں نے یہودی نظام کے مقابلے میں اپنا ایک معاشی نظام، اپنا ایک آزاد مارکیٹ کا نظام پیش کیا۔ نبی مہربان نے نہ صرف ایک آزاد مارکیٹ کی بنیاد رکھی بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سودی نظام اور سود کا ایک گناہ اتنا ہے جتنا آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، بلکہ اس سے بھی بدتر یہ گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے بہنوں، اس لیے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو سودی نظام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان کو اس کرپٹ نظام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ہی اعلان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ تو آئین کا تقاضا ہے، دفعہ 227 یہی کہتا ہے کہ پاکستان میں قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آئین یہی کہتا ہے آرٹیکل 38F میں کہ پاکستان میں سود اور ربا کا نظام نہیں چلے گا۔ 1981 میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک طویل سفارش ہے، رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ربا کا نظام، سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی شریعت عدالت نے 1991 میں یہی فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان میں سودی نظام اور ربا کا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ سودی نظام نہ ہو۔ آپ کے 1973 کے آئین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہ ہو۔ وفاقی شریعت عدالت کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں سودی نظام اسی طرح رائج ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب سودی نظام کے علمبردار سودخور حکمران ہو، کرپٹ لوگ حکمران ہو، چور اور ڈکیت حکمران ہو تو سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر کرپٹ لوگ حکمران ہو تو کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہی سودی نظام ہے جس کا وجود اس وقت خود امریکہ میں ختم ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں بہت سارے بینکنگ ایسا ہے، بینک کا نظام آپ ایسے وجود میں آئے ہیں جو سود کے بغیر
अपने निजाम को चला रहे हैं। जापान ने शरई सूद को सिपर तक लाया है, बहुत सारे मगरबी ममालिक में, लेकिन हमारे मुल्क में हुकूमत सूदी निजाम की सरपरस्ती करती है। और आज उस सूदी निजाम का नतीजा यही है कि पाकिस्तान का हर बच्चा मकरूज है। आज 222 बिलियन डॉलर तुम्हारे ऊपर इस सूद की वजह से कर्जा है। आज पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी का 98% कर्जों में और सूद में चला जाता है। पाकिस्तानियों अब कैसे तरक्की करेंगे कि आपके वफाकी बजट में तरक्याती कामों के लिए सिर्फ 800 बिलियन रखे जाते हैं, लेकिन 3000 इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे थे। बर्फबारी के बाद जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में सयाह रश बढ़ गया। आज़ाद कश्मीर के सियाहती मुकाम किरण पर स्याह ठंडे मौसम के साथ दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।